नमस्ते दोस्तों, आज फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपको बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। उस दिन हमने पढ़ा था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किससे कहते हैं, और आज हम पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। इट इज़ नेसेसरी टू कंबाइन इंडिफरेंस लाइन्स एंड बजट लाइन्स टू एनालाइज कंज्यूमर equilibrium. The budget line shows the sum of products and consumer can buy. On the other hand, the indifference line shows the combination of the two products preferred by the consumer. How will the consumer find the best alliance with his limited income, which will give him maximum satisfaction? When analyzing consumer equilibrium linearly, the budget line is drawn on an indifference map, and the consumer equilibrium is determined at the point at which the budget line at the toss of the indifference line. An indifference map of the consumer and the budget line are drawn together. यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए इंडिफरेंस लाइन और बजट लाइन को जोड़ना पड़ता है, यानी कि उसको एक साथ ही दिखाना पड़ता है, इंडिफरेंस और बजट लाइन। द बजट लाइन शोज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ए कंज्यूमर कैन बाय। बजट लाइन क्या दिखाता है? एक कंज्यूमर कितने प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है उसको दिखाता है। ऑन द अदर हैंड, द इंडिफरेंस लाइन शोज द कम्बिनेशन ऑफ द टू प्रोडक्ट्स प्रीफर्ड बाय द कंज्यूमर। इंडिफरेंस लाइन क्या दिखाता है? जो कंज्यूमर जो टू गुड्स पसंद करते हैं उसका डिफरेंसेस ऑफ पेयर्स दिखाता है इंडिफरेंस लाइन। हाउ विल द कंज्यूमर फाइंड द बेस्ट अलायंस विथ हिज लिमिटेड इनकम विच विल गिव द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यानी कि कंज्यूमर कौन सा अलायंस को चूज़ करके वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पा सके, वो डिटरमाइन करता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यानी कि इंडिफरेंस और बजट लाइन जहाँ पर टच होता है वहाँ पर ही उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है। यानी कि वो कंज्यूमर का जो लिमिटेड इनकम है उसी से हमें पता चलता है। When analyzing consumer equilibrium linearly, the budget line is drawn on an indifference map, and consumer equilibrium is determined at the point which the budget line at the toss of indifference line. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वहाँ डिटरमाइन होता है जहाँ बजट लाइन और इंडिफरेंस लाइन एक दूसरे को टच करते हैं। इंडिफरेंस मैप ऑफ द कंज्यूमर एंड द बजट लाइन आर ड्रॉन टुगेदर। एक इंडिफरेंस मैप में इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन को एक साथ ड्रॉ करके हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को दिखा सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ होता है? जहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है कंज्यूमर को, यानी कि जहाँ पर इंडिफरेंस और बजट लाइन का टच होता है। फिगर 3.14 मेजर्स एक्स ऑन एक्सिस एक्स एंड वाई ऑन वाई एक्सिस। एक्स गुड्स को हम ओ एक्स एक्सिस पर और ओ वाई पर वाई गुड्स को हम दिखाएंगे। ए बी इज द बजट लाइन, ए बी बजट लाइन शो कर रहा है कंज्यूमर का। Any point on the AV line indicates the sum of X and Y products that the consumer can buy with his or her limited income. AV line indicates the sum of X and Y products that the consumer can buy with his or her limited income. IC1, IC2, IC3 is the indifference line on the indifference map of the consumer. IC1, IC2 और IC3 इंडिफरेंस लाइन है जो इंडिफरेंस मैप पर दिखाया गया है। Each of these lines shows different alliances of X and Y gives equal amount of satisfaction। यानी कि IC1, IC2, IC3 जो alliances होते हैं वो दिखाता है X और Y प्रोडक्ट का जो
Each of these lines shows different alliances x and y give equal amount of satisfaction to the consumer, but the amount of satisfaction obtained in IC2 and IC3 is higher than IC1 because IC2 and IC3 are indifference lines located at a higher level than IC1. Now, the R point located on the IC3 indifference line is the most preferred pair for the consumer, alliance for the consumer, because R point gives maximum profit of the consumer. But due to the limited set of the budget, the consumer cannot purchase the pairs directed by R point or in IC3. So the consumer can buy as indicated by budget line is any point in the PUK or AV budget line. But the consumer will choose the consistency on the AV budget line, which is the highest, in the order to maximize his satisfaction within points P, E and Q. The P and Q points are in the indifference line IC1 of the minimum level, and the E point is in the indifference line IC2 of a higher stage and can that so the sum of x and y products represented by the point E will give the highest satisfaction to the consumer. So the consumer get equilibrium in E point through unlimited income and the basis of specific price of the two commodities. So the slope of the budget line and slope of the indifference lines are equal in the point E. The equilibrium in point E MRS XY is equal to PX और PY. यानी कि एक कंज्यूमर IC2 इंडिफरेंस लाइन पर E पॉइंट पर OM और ON प्राइस कोमोडिटीज़ को ही खरीद सकता है, क्योंकि R, P, Q R भी नहीं खरीद सकता क्योंकि R वो ज़्यादा होता है, बजट से ज़्यादा होता है, इसलिए वो कभी नहीं खरीद सकता। और PQ जो है वो नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका प्रेफर्ड नहीं है। E एक इक्विलिब्रियम है, E पॉइंट पर जो इक्विलिब्रियम होता है IC2 का, C पर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाता है, इसीलिए वो E पॉइंट पर OM और ON कमोडिटीज़ को खरीदता है। बजट लाइन भी मिलता है, इसीलिए वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करता है। सो बजट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत आप पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। आप इसके आगे वाले वीडियो में बजट जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो थ्योरी है और कंडीशंस अजम्पशंस में पढ़ा है, आप तो देख सकते हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू।